میرے عزیزو، آج کا جو ہمارا مضمون ہے، ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہو کین وی گیٹ ریچ، کہ ہم امیر کیسے بن سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے دور کے اندر امیر بننا، ترقی کرنا، خوشحال بننا ہر شخص کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور بننا بھی چاہیے۔ بیکم ریچ از ناٹ بیڈ تھنگ۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو یہ بری چیز نہیں ہے، صرف فرق سوچ کا ہے کہ آپ سوچ کیسے سکتے ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کے جو وچار ہیں، آپ کے بارے میں کیسے ہیں۔ میرے عزیزو، پہلے نمبر پہ جو پوائنٹ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، لو واٹ یو ڈیزائر۔ آپ اس چیز سے محبت کیجئے جس کی آپ خواہش کرنا چاہتے ہیں، جس کی آپ خواہش کرتے ہیں اس سے محبت کیجئے۔ لو واٹ یو ڈیزائر، جو آپ کی ڈیزائر ہے آپ اس سے محبت کریں۔ ڈیزائر یہ ہے کہ میں ترقی کروں اور ترقی کرنے والے لوگوں سے نفرت بھی، تو یہ مشکل ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک گڈ لیڈر بنوں اور لیڈر سے نفرت بھی کی جائے، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ مشکل ہے، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں امیر بنوں، ترقی کروں اور امیر لوگوں کے خلاف نیگیٹو پوائنٹ، نیگیٹو باتیں ان کے بارے میں آپ کی جائے، آپ کریں، تو رولز اینڈ ریگولیشن کے بالکل خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ لو واٹ از یور ڈیزائر، آپ اس چیز سے محبت کریں جو آپ کی ڈیزائر ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں خدا ترس بنوں، خدا ترس لوگوں سے محبت کریں، خدا ترس بن جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں امیر بنوں، امیر لوگوں سے محبت کریں، ان کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں، امیر بن جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں میں دولت مند بنوں، اور دولت کو کہتے ہیں آپ دولت برائی کی جڑ ہے، دولت یہ ہے وہ، آپ دولت کو ہی برا کہہ رہے ہیں، تو وہ کیسے آپ کے پاس اٹریکٹ ہوگی۔ آپ کی جو سوچ ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے، آپ کی پریزنٹیشن دیتا ہے، یہ آپ کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ کیسے بننا چاہتے ہیں۔ آپ کا مائنڈ، جو آپ کل تھے وہ آج ہیں، جو کل آپ سوچتے رہے ہیں نا وہ آج آپ ہیں۔ نیگیٹو سوچتے رہے ہیں، نیگیٹو وچار آپ کے ہیں، تو آپ آج نیگیٹو ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی جو ڈیزائر ہے نا، ڈیزائر از اے بیسک پوائنٹ۔ کسی بھی اچیومنٹ کا، کسی بھی چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کی ڈیزائر ہے۔ ڈیزائر بھی مثبت ہونی چاہیے، منفی ڈیزائر نہیں، مثبت ڈیزائر۔ اچھی خواہش کریں، اچھی تھاٹ رکھیں، آپ کے وچار، آپ کی جو سوچ ہے نیگیٹو نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کی سوچ آپ کی زندگی کی پریزنٹیشن دیتی ہے، آپ کی سوچ بتاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ سب سے پہلے اس چیز سے محبت کریں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ پہ ہم بات کریں گے جناب والا، بیکم ڈسائپل بیفور بیکمنگ ٹیچر۔ آج کے دور کے اندر لوگ شاگرد بنتے نہیں ہیں، استاد پہلے بن جاتے ہیں۔ دیکھنے کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ 2-4 دن استاد کے ساتھ گزارے شاگردیت میں، کچھ دنوں کے بعد وہ خود استاد بن بیٹھے، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، پرابلمز پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کم علمی جو کہ ہے یہ انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیکھیے، شاگرد بنیے، پھر آپ استاد بنیے۔ راجا بننے سے پہلے پون بنیے، راجا بننے سے پہلے آپ شاگرد بنے، آپ استاد کی خدمت کریں، تو پھر آپ اچھے استاد بن جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا نمبر ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کے اندر امیر بننا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو جو آپ چاہتے ہیں اس سے محبت کرنی پڑے گی۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اچھے سیکھنے والے بنیے، اچھے شاگرد بنیے، پھر آپ ایک گڈ ٹیچر بنیں گے۔
जो खिदमत गुजार बनता है वही एक अच्छा उस्ताद बनता है। ठीक है, अब देखिए मेरे अजीजों, तीसरे नंबर पे हम सीखेंगे फाइनेंशियल गोल्स। सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्टडी करते हैं, अगर पूछा जाए आपकी जिंदगी का मकसद क्या, आप अपने गोल दिखाइए, गोल लिस्ट क्या है, तो मेरे लिए गोल लिस्ट का तो नाम और निशान है, तो आप आगे बढ़ कैसे सकते हैं? अगर आपका कोई मकसद है ही नहीं है, अगर जिंदगी के अंदर कोई गोल ही नहीं है, तो आप सक्सेस कैसे करेंगे कि मैंने करना क्या है? आप गोल सेट कीजिए, आप गोल सेट करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। विदाउट गोल सेटिंग देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ सक्सेस। आप गोल सेट नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाब नहीं हो सकते। गोल सेटिंग बहुत जरूरी है मेरे से। 5वें नंबर पे देना सीखिए, खुशी के साथ देना सीखिए। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका नाम टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स के अंदर है। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात के अंदर उसका नाम है और उसका नाम है वॉरेन बफेट। और उसकी अगर देने के हवाले से बात की जाए तो अब तक 51 बिलियन डॉलर वो खुदा की राह में दे चुका है मेरे अजीजों। जितना ज्यादा आप खुदा की राह में देंगे उतना ज्यादा खुदा आपको देगा। जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे खुदा के रास्ते के अंदर उतना ज्यादा खुदा आपको मुहैया करता जाएगा। आपकी सोच से ज्यादा, आपके ख्यालात से ज्यादा, आपके तसव्वुरात से ज्यादा खुदा आपको देता जाएगा। सिर्फ देना सीखिए मेरे से। यही तो बात है आज के दौर के अंदर। बहुत सारे जो लोग हैं देने से भी भागते हैं। अमीर बनना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, गोल सेटिंग नहीं। अगर बात की जाए देने की, आपको खुदा की राह में खर्च करना है तो इसका भी नामो निशान नहीं है। बहुत कम खर्च करते हैं। खुदा की राह में खर्च करेंगे तो यकीनन आप क्या करेंगे, आपकी जो पैदावार होगी, आपकी जो वेल्थ होगी, आपकी जो दौलत होगी दिन ब दिन बढ़ेगी। ये तरक्की करने का कुलिया खुदा पाक की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। इल्हामी किताबें इस बात की शहादत देती हैं। खुदा के बंदे, खुदा के लोग, खुदा के खादिम इस बात की शहादत देते हैं कि अगर हम अपने माल से और अपनी पैदावार से खुदा की इज्जत करते हैं, तज़ीम करते हैं, तो हमारे खित्ते भरे रहते हैं। खुदा उनको दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाता है, तरक्की होती है मेरे अजीज को। अब देखिए ये शख्स वॉरेन बफेट 51 बिलियन के करीब, इससे ज्यादा मतलब कि खुदा की राह में दुनिया की है। खुदा की राह में खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो तरक्की करना चाहते हैं। मेरे नंबर 5 पे हम 6 पे देखेंगे, अगले नंबर पे हम देखेंगे स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप खर्च कीजिए जितना हो सके। आप बिजनेस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करें, जितना ज्यादा हो सकता है आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें मेरे चीजों। अब देखिए अगर बात की जाए वॉरेन बफेट की, तो जब 6 साल का ये बच्चा अब एक शॉप के अंदर जाता है, तो जब शॉप के अंदर वो विजिट करता है तो देखता है कि बोतलों के जो ढक्कन होते हैं ना वो इधर उधर बिखरे होते हैं। सारी बोतलें होती हैं उनके जो ढक्कन है कलेक्ट करता है, जो भी बोतल। अब देखता है उसको कंपैरिजन करता है कि कौन सी जो बोतल है वो ज्यादा मार्केट है उसकी, मतलब कि कौन सी बोतल ज्यादा सेल हो रही है। इसके ऊपर उसने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। अब देखिए उसके पास 25 सेंट थे। स्टार्ट इन्वेस्टिंग, उसने शुरू के अंदर ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब उसके पास 25 सेंट थे। अब 25 सेंट जब रिजल्ट निकाला गया तो देखा कि कोक की जो बोतल है उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी नजर में ज्यादा हुई। उसने कोक के कुछ टीम लिए, बोतलें ली और उसने उनको सेल कर दिया। जब सेल के अंदर उसको जो फर्स्ट प्रॉफिट आया, 25 सेंट की चीजें खरीदी और 30 की सेल की और उसको 5 सेंट का प्रॉफिट आया। जो प्रॉफिट था उसने ऊपर फेंका और कहा नॉट बैड, अब ये बुरा नहीं, बहुत अच्छा। मेरे चीजों आप अपने पैसे को काम में लगाएं। आपके जो पैसे हैं काम पे लगे। आज के दौर के अंदर देखने में आया है कि जो लोग हैं इसके जो पैसे वो काम पे नहीं लगाते। आपके पैसे बच्चे दें, आप अपने पैसों के बच्चे हैं उनको यूज करें।
पैसे को फिर कहाँ पे लगाए तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। उनको सक्सेस मिल गए। पैसा आपका पड़ा कुछ नहीं करता। आप अपने पैसे को जो कुछ है थोड़े से थोड़ा भी आप कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपके पास कुछ इनकम आए, ताकि आपके पास कुछ रुपए पैसा आए मेरे अजीज। ठीक है, अगले नंबर पे हम देखेंगे जितना हो सकता है आप उसको आप इन्वेस्ट करें। अब देखिए, अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट की तो आज के दौर के अंदर जो देखा जाए 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास फ्यूचर के लिए कोई सेविंग नहीं है। 50% लोग ऐसे हैं अगर देखा जाए तो उनके पास मुस्तकबिल की कोई सेविंग ही नहीं है। ठीक है, और जो 30% लोग हैं वो अपनी पेंशन पे गुजारा करते हैं। मतलब आएगा तो खाएंगे, आएगा तो हम क्या करेंगे, खाएंगे। आज खा लिया कल वैसे के वैसे। तो मेरे अजीजों, सेविंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इन्वेस्टिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इन्वेस्ट कीजिए, सेव कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब देखा जाए जिसके पास अगर 7 साल का बैकअप है, 7 साल का बैकअप आपके पास है तो आपका जो नाम है अमीर लोगों की लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, 7 साल का बैकअप का मतलब ये है कि अगर आप 7 साल का नहीं करते तो आपके पास खाने के लिए खुराक हो। ठीक है, अगर आप काम नहीं करते तो 7 साल के लिए आपके पास खुराक मुहैया हो। आज के दौर के अंदर हमारे लोगों का हाल ये है, देख लीजिए, अगर वो एक दिन काम पे जाए तो दूसरे दिन के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता। आप देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्टार्ट इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके रुपए पैसा, आपकी इनकम दिन ब दिन क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक शख्स था, एक शख्स के पास तो बहुत ज्यादा बरकत थी, बहुत ज्यादा पैसा था और उसको खुदा ने बहुत तरक्की दी रखी थी। और दूसरा शख्स खुदा से दुआ करता है, खुदा वो क्या कहते हैं, एक शख्स अमीर था और एक शख्स गरीब था। जो गरीब शख्स था ना, अमीर से जेलस होता था और वो ये कहता था, खुदा इसके पास जो कुछ है आप इससे ले लीजिए। हर रोज उसकी दुआ खुदा से यही होती कि जो इसके पास है आप खुदा इससे ले लीजिए। दिन रात वो इसी दुआ में रहता, दिन रात वो इसी दुआ में रहता, इसी ध्यान में रहता कि किसी ना किसी तरीके से इसके पास जो है खुदा इसको ले ले। अब देखिए क्या होता है कि ऐसा होता है कि जनाबे वाला दोनों लेवल पे आ जाते हैं। जो उसके पास था वो भी खत्म हो जाता है, जो अमीर शख्स भी जीरो पे आ जाता है और गरीब शख्स भी जीरो पे आ जाता है। दोनों को 20-20 रुपए दिए जाते हैं और दोनों भी काम करने के लिए कुल्हाड़ी खरीदते हैं कि आप काम करें और कुल्हाड़ी लीजिए, काम कीजिए। अब जो अमीर शख्स था उसने काम किया, पहले दिन काम किया, दूसरे दिन पहले दिन काम किया, 40 रुपए बचे, 20 रुपए इन्वेस्ट किए, 20 रुपए इन्वेस्ट किए और एक कुल्हाड़ी ली। अगले दिन के लिए 20 रुपए खर्चे। और जो गरीब शख्स था उसने भी, उसको भी 40 रुपीज 40 रुपए की बचत हुई। उसने जनाबे वाला सारी जो बचत थी ना, पैसे आपके बच्चे थे, ठीक है ना। जब तक पैसे आपके बच्चे नहीं देते आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब अगर माँ बाप बच्चे पैसे आ जाओ, आप उनको ही खाते जाएंगे, बच्चों को ना यूज करेंगे, तो इसका मतलब क्या कि एक दिन तो आपके पास जितना भी खजाना वो खाली हो जाएगा। अब देखिए, उसके पास 40 रुपए की प्रॉफिट आई और वो 40 रुपए पहले दिन उसने फिनिश, दूसरे दिन फिर उसी कुल्हाड़ी को यूज किया, खाया, फिनिश, तीसरे दिन फिर फिनिश, खाया, इनकम आई 40, खा गया। और जो पहले वाला शख्स, जो अमीर शख्स था, हर रोज 20 रुपए बचाता और एक अगले दिन जब उसकी इन्वेस्टमेंट से एक और उसने कुल्हाड़ी ले ली, मतलब कि 20 रुपए से अगले दिन बचे, 40 रुपए बचे, 20 रुपए उसने सेविंग की, फिर ऐसे बचाता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो शख्स सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बदौलत फिर अमीर शख्स हो गया और जो गरीब था अपनी सोच की बदौलत, अपने मनफी नजरियात की बदौलत आया और खाया, बिल्कुल पैसे का पैसा रहा और उसकी जनाबे वाला हालात बिल्कुल डाउन। वो जो अमीर शख्स था फिर उससे भी ज्यादा खुदा उसको तरक्की हुआ। ठीक है,
अगले नंबर पे आप अपनी जिंदगी के अंदर सीखिए, जितना जल्दी जितना ज्यादा हो सकता है आप अपनी जिंदगी के अंदर सीखें मेरे जिंदो। मैं आप लोगों से एक ग्रेट फिलोसोफर की बात करना चाहता हूँ जिसका नाम सकरात है। अब देखिए, सकरात को अगले दिन जहर का प्याला दिया जाता था, ठीक है, और मरने से पहले दिन वो बुक रीडिंग कर रहा था। जेल के अंदर जेलर ने से पूछा कि कल तो आपने मर जाना और आज बुक रीडिंग करने की जरूरत क्या है? तो सकरात फरमाता है कि मैं पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट बन के मरना चाहता हूँ। अब देखिए, ये है उसके अंदर पैशन, ये है सीखने का जज्बा। बात हमारी हो रही है सीखने की। तो मेरे अजीजों, आप जिंदगी के अंदर सीखेंगे तो आपको खुदा बरकत अता फरमाएगा। सीखने से ही आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक पर्सनालिटी है इंडिया की, भगत सिंह मेरे अजीजों, अगले दिन उसको फांसी दी जानी थी और इस दिन फांसी से एक दिन पहले वो किताब रीडिंग कर रहा था। इतना सीखने का पैशन था। अगर बात की जाए वॉरेन बफेट की मेरे अजीजों, तो एक दिन के अंदर वो 500 पेजेस पढ़ता है, मतलब कि 5 से 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ बुक रीडिंग उसने कर लिया। एक कॉमन शख्स के लिए, एक आम कॉमन शख्स के लिए जिंदगी के अंदर 30 किताबें लाजमी पढ़नी चाहिए। और मेरे अजीजों, अगर कोई शख्स कहता है कि मैं लीडर बनना चाहता हूं, तो उसको अपने लाइफ कैरियर में ड्यूरिंग लीडर 500 किताबों की स्टडी करनी चाहिए। उसको 500 किताबें क्या करनी चाहिए? पढ़नी चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर। मेरे दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखते नहीं है तो जिंदगी के अंदर मसाइल खड़े जाते हैं। सीखना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक रीडिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम खुदा के साथ गुजारिए, ज्यादा से ज्यादा वक्त आप बुक रीडिंग कीजिए। 7वें नंबर पे हम देखेंगे पावर ऑफ वर्ड। 7वें नंबर पे हम देखेंगे पावर ऑफ वर्ड, लफ्जों की ताकत। लफ्जों के अंदर कुव्वत है, लफ्जों के अंदर एनर्जी है मेरे अजीज। लफ्ज है जो इनके अंदर जान है। अगर आप लफ्ज बोलते हैं तो इनके अंदर एनर्जी है। अब देखिए, हम किसी शख्स से बोलते हैं तो क्या वो लफ्ज आपको नजर आते हैं? उनके अंदर एनर्जी है। ये आपकी जिंदगी पर अफेक्ट करते हैं। आपके बोले गए लफ्ज आपकी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। यही आपके लफ्ज आपकी जिंदगी की वजाहत करते हैं। आपके मुस्बत अल्फाज आपकी जिंदगी को मुस्बत बना देते हैं। आपके मनफी अल्फाज बोले गए नेगेटिव वर्ड्स आपकी जिंदगी को नेगेटिव कर देते हैं। आपकी नेगेटिव थॉट आपकी जिंदगी को परअसरअंदाज होती हैं, आपकी जिंदगी को परेशान कर सकती हैं। आपकी मनफी सोचें आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर देती हैं। मैं लफ्जों की ताकत के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। एक खूबसूरत कहानी के साथ आप लोगों के सामने बात करूंगा जिसके अंदर हम लफ्जों की कुव्वत देखते हैं, लफ्जों की ताकत। जो लफ्ज अगर आप किसी की वैसे सपोर्ट नहीं कर सकते, तो अगर आप अपने लफ्जों से उसकी मदद करेंगे तो उसकी जिंदगी यकीनन बदल जाएगी। इस कहानी के अंदर हम देखते हैं कि एक बेकारी होता है जिसको एक औरत सपोर्ट करती है अपने लफ्जों से। सड़क के किनारे बैठा होता है, सारा दिन भीख मांगता है। एक अंधा भिखारी होता है, कोई उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सारा दिन बैठा रहता है। तो एक शख्स आता है, एक आधा सिक्का दे के चला जाता है, एक आता है कुछ न कुछ दे के उसको चला जाता है, और कुछ बगैर दिए ही चले जाते हैं। जो शख्स देखता है उसको, मतलब कहने का ये है कि उसको खास किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब देखिए, एक उस जो भिखारी अंधा था उसने एक साइन बोर्ड लिखा था, और एक लड़की आती है और वो देखती है जो बेकारी के पास एक साइन बोर्ड पड़ा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए। साइन बोर्ड पड़ा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए। अब देखिए, वो जो औरत, जो लड़की आती है, उस बेकारी की, जो अंधा बेकारी है, उसकी मदद करना चाहती है, मगर मदद करती है अपने अल्फाज से। आपके बोले गए, आपके लिखे हुए लफ्ज किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, किसी की जिंदगी के अंदर तब्दीली लेके आ सकते हैं। अपने अल्फाज को सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। वो लड़की उस बुजुर्ग के साइन बोर्ड को पकड़ती है और उसके ऊपर कुछ लिख कर वो चली जाती है। अब जैसे ही वो साइन बोर्ड उधर उस अंधे भिखारी के पास रखती है, तो जो शख्स उसकी तरफ देखता कुछ न कुछ दे के उसको जाता।
शाम हो जाती है और उस शख्स के पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे उसके पास जमा हो जाते हैं और उसी वक्त वो लड़की आ जाती है। और वो जो बुजुर्ग होता है, जब लड़की आती है तो बुजुर्ग उस लड़की को पहचान लेता है। वो ब्लाइंड है, अंधा होता है, भिखारी होता है, मगर वो अपने हाथों से उसके शूज़ को, उसके पाँव को टच करता है और वो पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो दोपहर को आई थी और जिसने साइन बोर्ड पे कुछ तब्दीली की थी, जो साइन बोर्ड पर कुछ लिख के गई थी। और भिखारी उस लड़की से पूछता है, आपने साइन बोर्ड पे क्या लिखा था, क्या चिन्ह था? वो लड़की कहती है, साइन बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था, इट इज ब्यूटीफुल, ये वो फूल तुम्हें आई कास्ट, मैं उसको दे नहीं सकता। इस लफ्ज की तरह जो उस लड़की ने इस अंधे भिखारी के साइन बोर्ड पे भी लफ्ज लिखे थे, इनके अंदर जान थी, इनके अंदर एक एनर्जी थी, एक कुव्वत थी जो दूसरे शख्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। और आपके बोले गए अल्फाज दूसरे शख्स को अट्रैक्ट करते हैं। मेरे से बॉडी के अंदर सिग्नल्स होते हैं, आपकी बॉडी और किसी दूसरे की बॉडी, हर चीज के अंदर सिग्नल होते हैं। आपको उनसे, उन सिग्नल से जो शुआएं होती हैं आपकी बॉडी के साथ अटैच होती हैं। मेरे से लफ्जों के अंदर भी सिग्नल होते हैं, लफ्जों के अंदर एक ताकत होती है, एनर्जी होती है। अगर हम पॉजिटिव अल्फाज बोलेंगे तो नताइज पॉजिटिव और मुस्बत आएंगे। अगर हम मनफी अल्फाज अपने लिए बोलेंगे तो नताइज भी मनफी आएंगे। कभी भी आप अपने लिए ये इस्तेमाल ना कीजिए, किसी के लिए भी ये इस्तेमाल ना कीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता। खुदा ने आपको कुव्वत दी है और कुव्वत कुछ करने की दी है। खुदा आपको कुव्वत देता है, आपको लफ्ज़ों की कुव्वत देता है, लफ्ज़ों की ताकत देता है। स्क्राप के बारे में आपको बताना चाहूँगा, एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसके लफ्ज़ों के अंदर जान, उसने अपने लाइफ कैरियर के अंदर कोई बुक नहीं लिखी, मगर उसके लफ्ज़ों के अंदर जान थी। जब वो बोलता था तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, खुद ब खुद उससे बातें करना पसंद करते थे, उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते थे। सुकरात एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा फिलॉसफर था, उसके लफ्ज़ों के अंदर कुव्वत थी, उसके लफ्ज़ों के अंदर जान थी, जिसका शागिर्द अफलातून बना। मेरे अज़ीज़ों, अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, अच्छे नताइज आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे। अपने लिए कभी भी इस्तेमाल ना कीजिए कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। अब देखिए, आप अपने माइंड को अपने अल्फाज से, जो लफ्ज़ हम बोल रहे हैं ना, हम इन अपने बोले गए अल्फाज से हम अपने माइंड को सिग्नल देते हैं। हम कहते हैं कि मैं ये कुछ नहीं कर रहा, मैं ये कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है। तो आपने तो लफ्ज़ बोल दिए और आपके माइंड ने इन लफ्ज़ों को पिक किया और आपका माइंड हकीकत में समझ लेता है कि ये मुश्किल है, तो मुश्किल हो जाती है। अपने माइंड को सिग्नल दीजिए पॉजिटिव लफ्ज़ों का, और जब आप अपने माइंड को सिग्नल देते हैं मुस्बत अल्फाज का, कुछ करने वाले अल्फाज का, अच्छे अल्फाज का, तो वो जो आपका माइंड है हकीकत समझ लेता है और वो हकीकत आपके सामने आ जाती है। हकीकत में लफ्ज़ बदल सकते हैं, आपके लफ्ज़ों के अंदर जान है और आपकी सोच के अंदर एक सोच, लफ्ज़ों के अंदर जान है, तो जो आपकी जो सोच है ये आपके अल्फाज की प्रेजेंटेशन करती है, आपकी वजाहत करती है। मेरे से अपने लफ्ज़ों पर गौर करें और मुस्बत अल्फाज का चुनाव करें। नखट्टू दोस्त बनाने की बजाय एक इंटेलिजेंट फ्रेंड बना लीजिए, एक अच्छे दोस्त से सोबत बना लीजिए। मेरे जीवन, आप लोगों को अपनी थॉट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। अगर आपकी सोसाइटी नेगेटिव लोगों की है, नेगेटिव विचार है, तो आप यकीनन तरक्की नहीं कर सकते। नेगेटिव विचार जो आते हैं उधर जिंदगी के अंदर जो शुक्रगुजारी की कमी हो जाती है। जहां बात आती है किसी भी मनफी चीज की, तो उधर शुक्रगुजारी की
जिंदगी में से निकल जाती है। जब जिंदगी में से शुक्रगुजारी निकल गई, नेगेटिव थॉट आ गया, तो इसका मतलब यह कि बैड कंपनी है। और जो बैड कंपनी है ये अच्छी सोबतों को भी, बुरी कंपनी भी अच्छी सोबतों को बिगाड़ देती है। आज के दौर के अंदर बहुत सारे नौजवान लोग हैं जो अपनी बुरी सोबत की वसीला से अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, नौजवान नस्ल को, नौजवान लोगों को, नौजवान बच्चों को अपनी जिंदगी पे वर्क करना चाहिए, अपनी जिंदगी को खराब नहीं करनी चाहिए। आप देखिए, आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कीजिए। अब देखिए, एक शख्स के बारे में बात बताता हूं, उसका नाम था वॉरेन बफेट। अब वो कहता कि अगर मैं 35 साल तक अमीर आदमी ना बना तो मैं, जो मेरे शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है उससे मैं छलांग लगा के मर जाऊंगा। अब देखिए, वो शख्स 30 साल की उम्र में उसके मिलियनरी बन गया, उसके पास मिलियंस डॉलर आ गए 30 साल की उम्र में, सिर्फ कंपनी और उसकी थॉट। आप अपनी सोच बदलिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट चेंज योर एक्शन, चेंज योर कंपनी। अपनी कंपनी को चेंज कीजिए, चेंज योर एक्शन, चेंज योर कंपनी। अपने काम बदल लीजिए, अपनी सोसाइटी को बदल लीजिए, मेरे अजीजों, अपनी थॉट को बदल लीजिए, तो यकीनन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, यकीनन आप बढ़कर पा जाएंगे। नंबर नेक्स्ट पे, फेलियर इज अ हाईवे टू सक्सेस। अगर जिंदगी के अंदर नाकामी आती है तो परेशान नहीं। जिंदगी के अंदर कामयाबी, अगर जिंदगी के अंदर नाकामी आती है तो परेशान नहीं होना। एक शख्स के बारे में बात करना चाहता हूं। 21 साल का नौजवान लड़का है, उसने बिजनेस का आगाज किया, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। 22 साल की उम्र में उसको इलेक्शन के अंदर वो अपने आप को खड़ा करता है, इलेक्शन के अंदर हार जाता है। 24 साल की उम्र उसने बिजनेस का फिर सेटअप लेता है, स्टार्ट करता है, तो फिर नाकाम। मेरे से 26 साल की उम्र में उसकी फ्रेंड की, गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फुली तौर पे उसका जो नर्व्स ब्रेक डाउन हो जाता है, परेशान हो जाता है, समझ नहीं आती कि जिंदगी के अंदर क्या करना क्या नहीं करना, वो हिम्मत नहीं आता। अब देखिए, जब 27 साल की उम्र में नर्व्स ब्रेक डाउन होता है मेरे जीवन, तो बहुत सारा वक्त उसका नाकामियों के अंदर गुजरता है। और 52 साल की उम्र में वो शख्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। वो नाकामियां जिंदगी के अंदर आई, उसके परेशानियां जिंदगी के अंदर आई, मगर उसने गिव अप नहीं किया मेरे अजीजों, उसने हिम्मत नहीं हारी, और वो सक्सेस हुआ, और वो कामयाब हुआ, और उसका नाम इब्राहिम लिंकन था मेरे अजीजों। नेवर गिव अप, जिंदगी के अंदर हिम्मत नहीं हारनी, यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। आपका नाम अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में होगा, लोग आपसे प्रेम करेंगे, खुदा आपसे प्रेम करेगा, और आपके पास खुदा का वर्क करने के लिए रिसोर्सेज जराए बहुत ज्यादा मकदार में होंगे। आप देने वाले बन जाएंगे, मुहैया करने वाले बन जाएंगे, आप देने वाले बन जाएंगे, और खुदा आपको मजीद मजीद मुहैया करता रहेगा। मेरे से नेवर गिव अप, हिम्मत नहीं हारनी, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, तो यकीनन खुदा आपको क्या करेगा, बरकत देगा, खुदा आपको तरक्की देगा, तरक्की देगा, तरक्की में तरक्की देता जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।